Let me formally introduce Akkal. Sri Akkal Dudewala is a young and dynamic direct tax professional with a unique blend of academic excellence and practical experience in relation to matters involving not just litigation and assessment under the Income Tax Act, but also advisory on complex direct tax issues and inter-corporate structuring and mergers and acquisition. A fellow chartered accountant, company secretary, and a chartered financial analyst, he also holds BCom degree from the prestigious St. Xavier's College, Kolkata. A rank holder at all level of chartered accountancy course, he has gathered vital experience by working with EY, Mumbai in their litigation team, thereafter leading his own team of skilled chartered accountant at AKDD Associates, Kolkata. Alongside handling litigation matters of his clients in income tax matters and cases under the Black Money Act before the Appellate Authority, Mr. Dudewala also specializes in advising corporate clients on strategic tax planning, complex cross-border taxation issue, double taxation avoidance agreement, investment structuring and transfer pricing compliances. With in-depth knowledge in the field of accountancy, he also guides corporates in preparing financial statements in accordance with Indian GAAP and convergence with ICDS. He has also contributed various articles to professional journals and souvenirs. A charismatic and engaging speaker, Sri Akkal Dudewala brings clarity, depth, actionable insights to any form of taxation, finance and legal compliance. So let's all welcome Mr. Akkal. Shruti, CA Shruti, Shruti no naam sahi bola na maine? Yeah. I would like to call to felicitate CA Akkal with the memento. Yeah. Now we move on to the second session that will be taken by CA Akkal Dudewala. So it's all over to you, Akkal. Yeah. So good evening, everyone. Ayush, Manish Bhaiya, and all the seniors present and colleagues as well. So I am required to again compare the comparative of the earlier Income Tax Act 1961 and the present Income Tax Act 2025, which is going to come into effect from 1/4/26. So where Pooja left, she left on the procedures regarding the return filings and the income tax assessment and the reassessment. So I am coming to the block assessment, क्योंकि उसके ठीक बाद अब block assessments की provisions शुरू हो रहे हैं, which is assessment for search cases. तो सर search cases का क्या है कि now it is a complete mess, क्योंकि law क्या है पिछले 5 साल में 4 बार change हो चुका है. So originally, so just to give a brief again background, just for the interest, so and uncle and all would know that originally there was the concept of block assessment. There was 158B, BC, BD, BE, originally way back in 1990s. 2003 में ये 153A का concept सबसे पहली बार आया और block concept को हटा दिया गया. Why was the block concept there? कि भाई मैंने search किया, अब झगड़ा ये होगा कि भाई ये इनकम इस साल का नहीं, इस साल का है, इस साल का नहीं, इस साल का है, तो लोग छूट जाते थे कि बोलते थे कि नहीं भाई ये 1990 का नहीं है, 1991-92 का है. तो बोलते भाई सब जाओ भांड में, 6 साल का टोटल जो है हम लोग हिसाब लगा देते हैं. अब किसी साल में क्या होता है, रिसीट मिलती, किसी साल में पेमेंट मिलता, तो बोलते भाई पीक ले लीजिए, इसको सेट ऑफ कर दीजिए, टेलीस्कोपिंग का बेनिफिट दे दीजिए. तो उसके लिए दिस ब्लॉक कॉन्सेप्ट केम, सेटलमेंट कमीशन का कॉन्सेप्ट आया. बट देन सबको लगा कि ब्लॉक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा ही अब्यूज़ किया जा रहा है. सो देन 150, बिकॉज ब्लॉक का तो ये हो गया था कि भाई अगर असेसमेंट करवाना है तो ब्लॉक में करवा लेते, दैट इज़ मोर सिंपलर देन गेटिंग एन इंडिविजुअल असेसमेंट डन. तो फिर आगे आपका 153A का कॉन्सेप्ट जो 2003 में आया. तो 153A का कॉन्सेप्ट था कि मैं 6 साल की नोटिसेस दूंगा, आप 6 साल की रिटर्न फाइल करिए, फिर मैं असेसमेंट करूंगा. झगड़ा शुरू हुआ कि इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल है या नहीं है, तो 153A होगा, 153C होगा, 148 होगा. तो देखे कि सारे एडिशन लीगल ग्राउंड पर ही उड़ जा रहे हैं, मेरिट्स में कोई जाना ही नहीं चाहता. तो अब फिर 153A को हटा करके उन्होंने देखा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभिसार बिल्डवेल में बोला कि भाई अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि ये शेयर कैपिटल बोगस है या ये लोन बोगस है या कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, यू कैनॉट कवर इट अंडर 153A, बट यू आर फ्री टू कवर इट अंडर 148. So then all of a sudden the government realized कि अरे boss 148 is the most draconian provision which we have, and so let us cover everything in 148. तो उन्होंने 2020 में फिर अमेंडमेंट लाए कि बोले नहीं, अगर सर्च हुआ हो नहीं हुआ हो, जो करना है हम लोग 148 में ही आपके संग कर लेंगे.
उसमें आप रिटर्न लगाओ। तो अब सर पहले क्या था कि 153A में जब हम लोग रिटर्न लगाते थे, एंड इफ आई वुड ऑफर सम अनडिस्क्लोज्ड इनकम, सो देयर वाज एक्सप्लेनेशन 5 जो बोलता था कि अगर आपने रिटर्न में डिस्क्लोजर दे दिया तो हम लोग आप पर पेनल्टी नहीं लगाएंगे, और या अगर आपने नहीं दिया तो 10% लगा देंगे, नहीं तो 20%, 30%. सो देयर वाज अ वे इन विच आई कुड गेट डिस्क्लोजर ऑफ एडिशनल इनकम फ्रॉम द पर्सन्स हु आर बीइंग सर्च्ड, एंड देन देयर वाज अ सेटलमेंट कमीशन. Now under 148 what happened is that you have brought everything under 148. So there is no special provision. Now when I am being searched, so let us take an example कि मेरे ऊपर search हुई and I want to be a dutiful person and I want to disclose everything and pay taxes, and Ayush does not want to do that. तो मैंने रिटर्न के अंदर में 148 के रिटर्न में डिस्क्लोजर दे दिया, आपने असेसमेंट कर दी, मैंने टैक्स उस पर आपने 77.25% ले लिया, आपने पेनल्टी भी लगा दी, आपने इंटरेस्ट भी लगा दिया, और क्योंकि मैंने सुओ मोटो एडमिट किया आपने प्रोसिक्यूशन की नोटिस भी दे दी. आयुष जिसने एडमिट नहीं किया, ही इज ऑल्सो फेस्ड विद द सेम कॉन्सिक्वेंस ओनली. सो देर इज नो डिफरेंस इन देर वॉज नो डिफरेंस इन कॉन्सिक्वेंस where I was a tax evader and I wanted to be tax compliant, and where I was a tax evader and I continue to be a tax evader. So again this 148 was not a success story, क्योंकि कोई भी आगे ही नहीं आ रहा कुछ भी डिस्क्लोजर लेकर कि मैं ऑफर ही क्यों करूं जब मेरे ऑफर करने से भी आप उतना ही मारेंगे और बिना ऑफर किए भी आप उतना ही मारेंगे. तब उन्होंने ये रियलाइज किया, अच्छा फिर वो ड्रैकोनियन प्रोविजन था कि 6 साल प्लस 4 साल 10 साल, तो 148A में 10 साल खुल सकता है, नहीं खुल सकता. फिर वो कंफ्यूजन जो 148A का था, वेदर आई नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल और नॉट, बिकॉज अगेन द क्वेश्चन अरोज whether this 148 is being issued consequence to the material gathered in the course of search, or again it is a 148 notice which is from some third party information from third party searches. तो अगेन वो लीगल डिस्प्यूट शुरू हुए, रिट्स में काफ़ी सारे आपके 148 के नोटिसेस स्क्वॉश कर दिए गए. सो नाउ अगेन एवरीथिंग वाज चेंज्ड एंड 158BC वाज ब्रॉट इन फ्रॉम 1 September 24. नाउ जस्ट रियलाइज कि लेजिस्लेचर क्या सोच रहा था कि हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 25 लाने वाले हैं 1 April 25 से, जिसका हम लोग ने डिस्कशन पेपर भी निकाल दिया था और इनकम टैक्स बिल हम लोग ने पहले ही दिखा दिया था. उसके बाद में विंटर सेशन में, मतलब मॉनसून सेशन में, मैं 1 September से ऑल ऑफ अ सडन मैं ये नया ब्लॉक असेसमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आ जाता हूँ, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी यूटिलिटीज फॉर दिस ब्लॉक असेसमेंट रिटर्न फाइलिंग, विदाउट प्रोवाइडिंग एनीथिंग इन दी ITBA पोर्टल. तो अब ब्लॉक कॉन्सेप्ट भी क्या किए कि भाई जो 10 साल का था कि इट इज़ अ ड्रैकोनियन लॉ कि 3 + 7 आप लोग 10 साल खोल रहे हैं, लेट अस रिड्यूस दिस. तो रीअसेसमेंट वाज 3 + 2 years कि आप 3 साल खोल सकते हैं और 5 साल खोल सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन ब्लॉक के अंदर में हम लोग 6 साल खोल सकते हैं. उसके अंदर भी वेरिड सर्कमस्टांसेस वो लोग लेकर आ गए ब्लॉक असेसमेंट के लिए, एंड दे ब्रॉट इन अ फ्लैट रेट ऑफ टैक्स इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट विच इज 60%. तो साल कोई भी हो आपको 60% टैक्स देना है अगर आप रिटर्न में एडमिट कर लेते हैं. यू आर नॉट फेस्ड विथ एनी अदर कॉन्सिक्वेंसेज, नो अदर पेनल्टीज, नो प्रोसिक्यूशन. So this is what was the concept of block. So we again come back to the 1990 eras. So basically घूम करके it is actually old wine in new bottle. So it is not from the last act, it is actually from the old act. So what we have come back to. अब 3 और 5 था 148 में और 3 + 3 था इसके अंदर में. इनकम टैक्स एक्ट 25 से वापस अब 148 आ गया है 4 + 2. तो 3 और 5 को फिर चेंज कर दिया गया है, 148 हो गया है 4 + 2, मतलब वापस 6 साल. अब सो वी आर अगेन बैक टू वेयर वी वर देयर इन 2020 आफ्टर 5 years. वी आर बैक टू स्क्वायर वन. नाउ 4 + 2 तो है ही, ब्लॉक असेसमेंट में भी 6 साल है ही. तो क्योंकि उन लोग 24 में ही अभी ये लॉ लेकर आए हैं, सो टू पुट इट इन ब्रीफ, this entire law of this 158BC of block assessment has been replica copied into the new act without there being much changes, and I'll discuss some of those few changes, matlab, because I'm trying to give you the broader concept rather than taking you through the each subsection or each of the provisions of. तो एक तो कॉन्सेप्ट था कि ब्लॉक पीरियड और अनडिस्क्लोज्ड इनकम. तो अब इसके अंदर मतलब आई एम इनफैक्ट कमिंग टू दी प्रोविजंस मोर, क्योंकि सिंस दिस इज अ रिलेटिवली न्यू प्रोविजन ऑफ सितंबर, सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग दी ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स. अब क्वेश्चन ये है कि आपने एक ITR यूटिलिटी तो नोटिफाई कर दी कि आप 6 साल का अपना इनकम उसमें डिस्क्लोज कर दीजिए. आप अगर वो ITR यूटिलिटी देखेंगे तो उसमें उन्होंने 6 हेड्स ऑफ इनकम भी दे दिए हैं. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, एवरीथिंग इज देयर.
On one hand, you are saying that you offer the undisclosed income, you have to pay tax at the flat rate of 60%. So undisclosed income is defined जो आपने रिटर्न में नहीं दिखाया और अब जो आप दिखाना चाहते हैं. It has been defined as undisclosed income in section 158B, which is now 301 of the Act. एक बार Act, I think I've kept it over here. I'll just read the definition for everyone's understanding. तो भाई undisclosed income includes, it is an inclusive definition, any money, bullion, jewelry, virtual digital asset or valuable article or thing, or any expenditure or income based on any entry in the books of accounts or other documents or transactions, where such money, bullion, jewelry, VDA, thing, entry in the accounts or other documents or transaction represented wholly or partly income or property which has not or would not have been disclosed for the purposes of the Act, or any expense, exemption, deduction or allowance claimed under this Act which is found to be incorrect. So any expense, exemption, deduction or allowance claimed under this Act is found to be incorrect. Now sir, let me take an example that where I have claimed expense, a cash expense of 20,000 rupees. 40A3 में बोलते हैं भाई 10,000 से बेसी मैं आपको कैश अलाउ नहीं करूँगा. Now this has been discovered as a consequence of the search. अब आप ITR यूटिलिटी में बोल रहे हैं मैं इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऑफर करूं. सो अंडर व्हाट, at what rate am I required to offer this income now? So if I offer this income, whether it will be taxed at 30% or 25%, which is today's rate, कि आज 22% हो गया सर कंपनी के ऊपर में, or do I offer it at 60% that this is undisclosed income? Because now the question is that can the legislature expand the definition of undisclosed income to include something कि सर समझिए 14A का झगड़ा है. अब 14A में आपने डिसअलाउ नहीं किया, अब आपको लगता है भाई 1% में डिसअलाउ कर देता हूँ, कौन झगड़ा मोल लेगा रिटर्न में. So whether that disallowance also will now qualify as an undisclosed income or not, and whether that will be taxed at 60%. Why am I saying so, sir? And why is this relevant? Because ये अब नया आने वाला है, and sir we will be faced with this litigation. क्योंकि सर 158B में आपका असेसमेंट हो रहा है ऑफ द टोटल इनकम विच इंक्लूड्स अनडिस्क्लोज्ड इनकम. सो देयर आर टू असेसमेंट्स विच इज हैपनिंग. वन इज द असेसमेंट ऑफ योर टोटल इनकम एंड वन इज द असेसमेंट ऑफ योर अनडिस्क्लोज्ड इनकम. So the language is very clear that there is a different concept of total income and there is a different concept of undisclosed income. Total income उसी लिए आप 6 heads दिए, वरना सर ITR यूटिलिटी में आपको 6 heads देना ही क्यों था? You could have simply written undisclosed income, मैं उसमें लिखता और मैं 60% पर ऑफर कर देता. अब समझिए कि आई एम फेस्ड विथ वन सिचुएशन कि भाई मेरे असेसी ने गलती से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म में ऑफर कर दिया कि भाई उसका एक्चुअली वो 2 साल ख़त्म नहीं हुआ था, वो 2 साल से 2 दिन पहले ही था, उसको लगा कि उसका 2 साल हो गया है और उसने LTCG ऑफर कर दिया. Now if I want to correct this in this ITR to prevent any penal consequences against me, am I required to offer it at 20%, 12.5%, or do I offer it under 60%? Because are you going to say that this is an incorrect claim which was made in the return of income and which as a consequence of this search I am going to now disclose? So the concept of undisclosed income, to my mind, वापस we have to refer back to the jurisprudence which is there. क्योंकि 271AA में भी ये काफ़ी झगड़ा हुआ था, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जिस पर आपका वो 10% और 20% और 30% का पेनल्टी लगेगा. सो अकॉर्डिंग टू मी सर, जहाँ पर अगर कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन, अकॉर्डिंग टू मी इट हैज़ टू बी हैज़ अ कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, कि जहाँ पर इनकरेक्ट हैज़ टू बी अंडरस्टूड एज फॉल्स, that where there is a false exemption claimed or where there is a false deduction claimed or where there is a false allowance, जैसे then that will qualify as an undisclosed income. But where the entry or claim is found to be incorrect based on an inadvertent mistake or based on an incorrect interpretation of the legal provisions, then to that extent that will not qualify as undisclosed income. To that extent I am only revising my total income. So again we are coming back to the jurisprudence कि अगर कोई incriminating material है सर्च में, तभी उसके बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, अदरवाइज आप उसको 60% में टैक्स नहीं कर सकते. क्योंकि झगड़ा अंकल वहाँ भी होने वाला है कि आपका जब मैं ऐड कर रहा हूँ
वेदर अब जब एओ ऐड करेगा, समझिए एओ को 14A का ही डिसअलाउंस करना है, अगेन गोइंग बाय द सिंपलेस्ट ऑफ एग्जांपल, और पीएफ ईएसआई का डिसअलाउंस करना है, should he add it to the assessment of my total income or should he add it to the assessment of my undisclosed income? कैन ही से कि भाई आपका भाई अब ये पीएफ ईएसआई का ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था तो आपको क्लेम नहीं करना था, लेकिन तब भी आपने लास्ट 21-22 वाले रिटर्न में आपने क्लेम कर लिया है, सो कैन आई टैक्स दिस एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम और नॉट? So that again will assume significance. So this is the concept of block period, undisclosed income. I am aware कि आप लोग को अभी जो नया block provisions आया है तो उसमें execution of the last authorization and the date of handing over of the information से जब time limits calculate होगा, that I am sure everyone is aware, so I am not going into those timelines and dates because that is exactly the same. अब आपका एक ये देखिएगा 158BA जहां पर आपका असेसमेंट ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम बोलता है, देयर इज अ वाइटल चेंज। पूरा लैंग्वेज सेम है, नॉट विथस्टैंडिंग की जगह इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ ऐड कर दिया है। सो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड और द क्वेश्चन व्हिच आई एम आस्किंग टू माई सेल्फ, व्हाट डू यू मीन बाय इररेस्पेक्टिव व्हेन यू आर रिमूविंग द नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज? सो इट इज नो लॉन्गर नॉट विथस्टैंडिंग, इट इज सेइंग दैट इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर प्रोविजन। सो डू यू से दैट अगेन इट इज जनरल वर्सेस स्पेसिफिक, or that once I am assessed under this then no other provision of the act will apply to me? Why will this assume significance? क्योंकि Actually, it's same as notwithstanding. मैंने एक टैक्स संवाद सुना था, कोई IRS थे उन्होंने बोला कि हमने ऐसा शब्द हटा दिए, notwithstanding वाले शब्द हटा दिए और उसकी जगह हमने irrespective या despite ऐसे easy words डाल दिए ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। मतलब उससे प्रोविजंस को उन्होंने कितना सिंप्लीफाई किया है, मतलब दिस इज रियली अ वेरी बिग। क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन कहाँ आ रहा है कि आप लोगों को ध्यान में होगा 115BBE में जब सेक्शन 68-69 के अंदर में टैक्स होता है अनएक्सप्लेन्ड इनकम, सो देयर इज अ पेनल्टी प्रोवाइडेड अंडर 271AAC कि आपको उस पर एडिशनल 10% है। ब्लॉक असेसमेंट में जब मैं इनकम ऑफर कर रहा हूँ या कोई इनकम इधर 60% पर टैक्स हो रहा है तो उसमें दे आर गिविंग मी इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी अंडर द अदर प्रोविजंस व्हिच डू नॉट कंटेन द मेंशन ऑफ 271AAC। बट आई वाज टेकिंग द प्ली कि भाई ये नॉन ऑब्स्टेंटेड प्रोविजन है, आई एम बीइंग टैक्स्ड अंडर दिस प्रोविजन एंड दिस प्रोविजन अलोन, आई एम नॉट बीइंग टैक्स्ड अंडर 115BBE। तो मेरे पर 271AAC इज नॉट फीचरिंग, बट स्टिल 271AAC में मेरे को पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। Now what I want to understand is कि whether the usage of this term irrespective will create a confusion in the minds, क्योंकि मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, though the assessment is being framed under 158B, the assessment will be of total income and of undisclosed income. Precisely, that is what I'm trying to understand कि what is the mind of the legislature in notifying this ITR. तो मेरा जो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन है कि जहां पर मेरा टोटल इनकम में अगर कुछ एडिशंस है बिकॉज ऑफ माय इनएडवर्टेंट एरर या आपको मिला नहीं है सर्च में, बट मेरे को लगता है कि नहीं ये कैपिटल गेन मेरे को ऑफर करना था एंड आई वांट टू ऑफर इट टू टैक्स, so there can be situations, मतलब I am thinking that probably the legislature is envisaging that there can be situations की, और या तो ये undisclosed income कौन से हेड का है। अब सर मैं तो यही तो मैं आप समझिए, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्म नोटिफाई करते समय अनडिस्क्लोज हो रहा है कि कहाँ छुपा रहा है ज़्यादा। हाँ, अब क्योंकि अब मैं वापस कहाँ पर आ रहा हूँ कि आपने बोला है कि असेसमेंट मेरे टोटल इनकम का होगा अंडर दिस विच इंक्लूड्स माई अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सो वेदर नाउ वंस द असेसमेंट ऑर्डर इज बीइंग पास्ड, सो देयर विल बी एन असेसमेंट ऑफ द टोटल इनकम फॉर द 6 years, क्योंकि आई एम कमिंग टू अ वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट राइट नाउ कि अभी हम लोग अपने ITBA में पोर्टल्स में देखते हैं कि 21-22 का ये ऑर्डर है, 22-23 का ये ऑर्डर है, 23-24 का है, तो ब्लॉक असेसमेंट का तो एक अलग टैब खड़ा हो जाएगा ऑर्डर का। अब अगर समझिए एओ ने मेरे टोटल इनकम में कुछ एडिशन किया और कुछ एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम का असेसमेंट किया, तो जो टोटल इनकम का होगा मेरे हिसाब से वो टैक्स ईयर वाइज होगा कि वो 6 टैक्स ईयर्स में उसका रिस्पेक्टिव एडिशंस होना चाहिए और उस पर टैक्स 25% प्लस इंटरेस्ट फॉर दोज 6 years या 25% प्लस इंटरेस्ट फॉर दोज 3 years वो आपका लगेगा।
और जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम का होगा उस पर आपका फ्लैट 60% टैक्स रेट लगेगा. सो दो देयर विल बी अ सिंगल ब्लॉक असेसमेंट ऑर्डर, हाउ विल इट बी कैप्चर्ड इन माई ITBA डेटा कि ये टैक्स आपका कहाँ कहाँ एलोकेट होगा जिसका डिमांड्स क्रिएट होगा. और अब अगर मेरा टोटल इनकम का असेसमेंट हो रहा है विच इंक्लूड्स अनडिस्क्लोज्ड इनकम, बिकॉज इट इंक्लूड्स अनडिस्क्लोज्ड इनकम, so can the additions made under the total income be subject to penalty under 270A in spite of the immunity provided in section 158 BF कि भाई आपका जो भी इस एक्ट में असेसमेंट हो रहा है उसमें 270A का पेनल्टी नहीं लगेगा. हाँ, यही मैं तो यही बोल रहा हूँ. मेरे हिसाब से बाय दैट लॉजिक इट इज प्रोटेक्टिंग मी बिकॉज इट इज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग. So, because this is like 115 JB, that this is a code in itself. So, I have to be restricted to this code. So, मतलब मेरे हिसाब से ये जो प्रोविजन का जो ओवरऑल लैंग्वेज है, that will create more questions or litigation for us in future rather than answering what the government is wanting to do. Because again, I am coming to another interesting point. कि as I read the definition of the undisclosed income, it says any money, bullion, valuable jewelry found in the course of such any transaction reflected in the books of accounts. Now, if my block assessment is going on and there is a search at a party B premises where some data concerning me is found, because provision में ये भी प्रावधान है कि अगर during the course of assessment में भी कोई information आता है, आप उस पर addition कर सकते हैं. Whether that will be added as my undisclosed income or as my total income. सर अब मेरा उसमें सेकंड क्वेश्चन ये है, तो मेरा 158BD क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज नाउ यू हैव फाउंड इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू मी एट द प्रीमाइसेस ऑफ ए थर्ड पार्टी. कैन यू एट ऑल फ्रेम अ 158BC असेसमेंट इन माई केस व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ 158BD विच सेज कि सर आपका अगर इंफॉर्मेशन किसी और के सर्च पर मिला और आपके यहाँ सर्च उस समय नहीं हुई थी तो आपका 158BD में खोला जाएगा. सो now the provisions are at a crossroads where 158BC empowers the AO कि कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आता है पकड़ लो जोड़ दो, बट लेकिन जोड़ना क्या बोलकर है. सेकंड, आप जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि 158BD आप इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन. इट इज स्पेसिफिक टू द पर्सन्स हु आर नॉट सर्च बट हुज इंफॉर्मेशन हैज बीन फाउंड. सो वेदर 158 then can I challenge the validity of the assessment itself कि सर दिस असेसमेंट इज बैड इन लॉ. जैसे अपने सर 153 और 153C में करते थे कि सर मेरे ऊपर सर्च हुई तो आपने 153A इनिशिएट किया, लेकिन आप एडिशन करना चाह रहे हैं जो दूसरे के यहाँ सर्च का डेटा में मिला, तो मैं बोलता सर आप 153A में नहीं जोड़ सकते, आपको 148 करना है 148 करिए, आपको 153C करना है. सो वेदर इज, सो नाउ अगेन विच वाइन इज इन दिस न्यू बॉटल कि ये आप 150, क्योंकि आप 158BD जो है अदर इंफॉर्मेशन का, हम लोग उसको कैसे रीड करें अब फिर. बिकॉज देन बाय दैट लॉजिक आपका जब मैं आई एम कमिंग बैक टू द रीअसेसमेंट प्रोविजंस इन 297 बिकॉज देयर ऑल्सो इन अर्लियर 147 एक्सप्लेनेशन 3 की अगर रीअसेसमेंट होते समय मेरे पास कुछ भी और कोई इंफॉर्मेशन या अदर इशू आता है मैं कंसिडर कर सकती हूँ. 297 में भी अभी भी बोला जा रहा है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आया तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ. बट देन अगेन आई चैलेंज आई से कि सर अगर ये था तो 147 नहीं कर सकते, आपको 158BD करना था. बिकॉज द बेसिक रूल ऑफ लॉ इज कि स्पेसिफिक प्रोविजन विल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन. नाउ व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक, बिकॉज इफ यू आर टैक्सिंग मी अंडर दिस, नाउ यू विल आर्ग्यू कि सर आपको फर्क क्या पड़ रहा है, यहाँ टैक्स करो या वहाँ टैक्स करो. आई एम सेइंग मेरे को फर्क पड़ रहा है. अगर मेरे को आप यहाँ टैक्स कर रहे हैं, आई एम बीइंग टैक्स्ड एट 77.25%, आई एम इन्वाइटेड विद पेनल्टी, आई एम इन्वाइटेड विद प्रोसिक्यूशन. 158BD में I have an opportunity to come clean, pay 60% tax without interest, and then be saved from penalty and prosecution. So you are robbing me of an opportunity by adding it under 148. So then when my beneficial rights have been taken away by the department, then that assessment becomes bad in law for violation of the principles of natural justice, क्योंकि लॉ में हमको एक और बेटर प्रोविजन अवेलेबल था इस चीज के लिए, विच वॉज अ स्पेसिफिक प्रोविजन. सर कोर्ट का आएगा कहाँ, 24 में तो लॉ आई है, पुराना में है आपका. सो आई वॉज रिसर्चिंग, पुराने में आपका ये है कि आप ब्लॉक असेसमेंट में सिर्फ मेरा
ये इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का भी जो 153A में कॉन्सेप्ट आया था ना, सो व्हाई आई वाज टेकिंग यू थ्रू द एंटायर हिस्ट्री, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल वर्ड पूरे 153A में कहीं पर यूज नहीं है. This was a jurisprudence which was introduced by the tribunals, then by the High Court, approved by the Supreme Court. And this was brought in by the decision of a Supreme Court rendered in the context of block assessment. क्योंकि उस समय भी यही था कि ब्लॉक असेसमेंट जो होता है, ऑफ उस समय से ब्लॉक असेसमेंट अनडिस्क्लोज्ड इनकम का होता था. तो आपका टोटल इनकम का तो अलग असेसमेंट चलता था और ब्लॉक असेसमेंट सिर्फ अनडिस्क्लोज्ड का होता था. तो वो जो अनडिस्क्लोज्ड का जो ऑर्डर होता था उसमें था कि भाई जो आपको सर्च में मिला सिर्फ वही आप वहां जोड़ सकते हैं, जो नहीं मिला वो आपको इधर ही जोड़ना पड़ेगा, और अगर किसी और का मिला तो आप यहां नहीं जोड़ सकते, वो आपको यहां जोड़ना पड़ेगा. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट विच वॉज ब्रॉट इन टू 153A, एंड आई थिंक विच विल बी अगेन इंपोर्टेड इन टू दिस न्यू प्रोविजंस अगेन. सो अगेन, सो मेरा मेन टेक अवे फ्रॉम दिस 158BA प्रोविजन जो था, दैट वाज रिगार्डिंग द असेसमेंट ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम, कि वो टोटल अनडिस्क्लोज्ड में क्या आएगा क्या नहीं आएगा. नेक्स्ट इज 158BB विच इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल. तो देखिए आपका उसमें भी देखिए कंपोनेंट्स दो हैं जो पहले भी थे. इनकम डिक्लेयर्ड इन ब्लॉक रिटर्न, इनकम डिटरमिन्ड बाय AO, which is an income excluded is income already assessed under 270, 270(10), and income declared. So they are recognizing the concept that there is a different undisclosed income and there is a different total income in this act itself. And now the basis of computation is also evidence in the course of search, survey or requisition. So where it is not in the course of search or survey, whether that can be added under 158BC by way of undisclosed income or not. वन 158BC इज द प्रोसीडियर फॉर ब्लॉक असेसमेंट. टाइमलाइंस एकदम सेम है. 60 दिन का आपको टाइम नोटिस से अलाउ किया जाएगा. अब वो नोटिस का एक नया झगड़ा जो होना है कि ये नोटिस कब से शुरू होगा और ये पीरियड कब खत्म होगा, बिकॉज यूनिकली नाउ दे आर सेइंग कि आपका जो टाइमलाइन है ऑफ द असेसमेंट, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इशुएंस ऑफ नोटिस टू यू, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ऑथराइजेशन ऑफ द सर्च. Ordinarily we understand last authorization is the last PO. जिस दिन लास्ट PO ऑपरेट हुआ, लास्ट मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, सर्च खत्म हो गई है सर. अब बोलते हैं वहाँ से हम लोग टाइमलाइन करेंगे, बट वहाँ के बाद अगर जब से अप्रेजल रिपोर्ट AO को हैंडओवर किया जाएगा, विच एवर इज लेटर, तो ऑर्डिनरली हमेशा अप्रेजल रिपोर्ट तो बाद में ही हैंडओवर होगा. अब ये डेट ऑफ अप्रेजल कैसे डिटरमिन होगा, समथिंग विच इज नेवर इन्फॉर्म टू मी. बिकॉज अर्लियर अगर मैं RTI में एप्लीकेशन डालता तो आप बोलते अप्रेजल रिपोर्ट जो है दैट इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, दैट इट कैन नॉट बी शेयर्ड विथ यू, वी कैन नॉट गिव यू द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्च. नाउ यू आर सेइंग कि सर माय टाइमलाइन इज बीइंग डिसाइडेड फ्रॉम द डेट ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ अ रिपोर्ट फॉर विच आई एम बीइंग केप्ट इन डार्क, आई एम बीइंग केप्ट एज अ ओपेक पर्सन. सो हु इंटिमेट्स मी that what is the date so that I can challenge the validity or the limitation of this notice which is being issued to me. अरे मैं बोल रहा हूँ सर, मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे आज के दिन समझिए, आज अगर एक संग 3 जगह सर्च हुई है, आपके यहाँ, मेरे यहाँ, इसके यहाँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी तीनों अप्रेजल सेम डेट पर जमा होगी. आपका अप्रेजल अलग डेट पर हो सकता है, मेरा अलग डेट पर हो सकता है, इनका अलग डेट पर हो सकता है. तो ये डिटरमिन कौन करेगा कि आपका डेट्स किसको कब कब इंटीमेट किया जा रहा है. अच्छा, एक है कि मैंने जमा किया एज अ AO, आई सबमिटेड इट टू द additional gave his remarks, he submitted it to the PDI gave his remarks, he submitted it to the DG forwards it to the concerned PCIT allots it to the respective range, who then transfers it to the AO. Which date are we going to take? The date on which DG intimates to the CIT, the date on which CIT intimates to the second. अब ये डेट भी क्या दिन बेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर अगर आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमको पता चलनी है नहीं ऑर्डिनरीली, और ये चीज़ आप हमसे हमेशा छुपा कर रखेंगे, और जब मैं लीगैलिटी को चैलेंज करूंगा तब आप बोलेंगे नहीं नहीं सब विद इन लिमिटेशन था, तो भाई डेट तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, आपके रिकॉर्ड का डेट है, मैं चेंज कर देता हूँ. तो शुडेंट दिस डेट बी नाउ जनरेटेड ऑन अ दिन बेस की कब उन्होंने इंटीमेट किया. एंड व्हाट डू यू से वेयर देयर इज अ रीजनेबल लैप्स, कि मैंने अप्रेजल जमा किया इन द मंथ ऑफ अगस्त, लेकिन फॉरवर्ड किया गया इन द मंथ ऑफ जनवरी टू दी
AO. So who is answerable for this 4 months delay by which automatically my time for reassessment is getting extended? So these are some of the concerns which according to me, or litigation points which according to me may arise and which we may need to keep in mind when drafting our submissions or appropriate representation. नैक में सेम अंकल कॉपी सेम चीज कॉपी पेस्ट है कि भाई वही लास्ट ऑथराइजेशन, मतलब पहले क्या था प्रोवाइजो था, उसको सब सेक्शन कर दिया है और कुछ चेंज उन्होंने लाया नहीं है, क्योंकि उसमें हो क्या रहा है कि एक ही ग्रुप का हो सकता है, क्योंकि अगर 3 अलग सर्चेस हुए, ऑल्दो वी 3 आर इंटरकनेक्टेड, वी कैन हैव 3 डिफरेंट टाइम बारिंग डेट्स. सो हु इज गोइंग टू कीप अ ट्रैक ऑफ दोस टाइम बारिंग डेट्स एंड हाउ डू वी से कि ये सही है या गलत है? Now 158BD, which I was just talking about, where assessment is to be triggered in case of a person who is not searched. So again, it is the same. It is 153C in a new avatar. Again, the same concept कि भाई थर्ड पार्टी मटेरियल था, थर्ड पार्टी मटेरियल में उसके यहाँ मेरा कोई डॉक्यूमेंट मिला, इधर भी वो सेटिस्फैक्शन का कॉन्सेप्ट रहेगा AO, क्योंकि यहाँ पर भी वो डीम डेट ऑफ सर्च का कॉन्सेप्ट है. So the deemed, अब इसके अंदर भी sir, I'm just again for the benefit of the audience, deemed date of search था the date on which the AO of this other person is recording the satisfaction. Ordinarily search आपके यहाँ हुई 20 अगस्त 2020 को. अब assessment के दौरान में 22 में realize हुआ कि ये इनका नहीं है, मेरा डॉक्यूमेंट है, तो 22 में AO of the search person records कि भाई ये जो है ये अक्कल का डॉक्यूमेंट है, और 22 में फिर मेरा AO रिकॉर्ड करता है कि हाँ ये अक्कल का डॉक्यूमेंट है, तो मैं अक्कल का रीअसेसमेंट करूंगा. सो लॉ सेज दैट द डीम्ड डेट ऑफ सर्च इज 2022 फॉर अक्कल. व्हाई इज दिस डीमिंग कॉन्सेप्ट नेसेसरी? इट इज टू असर्टेन द पीरियड ऑफ ब्लॉक असेसमेंट. अगर 22 में नोटिफाई हुआ है तो वेदर 6 years प्रायर टू 2022 और 6 years स्टिल प्रायर टू 2020. सो 6 years प्रायर टू 22. अब इसमें भी एक अनोखा जो अमेंडमेंट है कि ये सबको, ये कलकत्ता नेटवेयर में और उसमें हुआ था कि 22 के पहले से आपका पीरियड कंप्यूट होगा. सो देर वॉज ए एनालॉमस सिचुएशन अराइजिंग कि अगर समझ लीजिए 3-4 साल बाद इंटीमेट किया गया, समझिए 2024 में इंटीमेट किया गया, 20 में जो डेटा मिला दैट वॉज पर्टेनिंग टू 2016, तो सर वो ब्लॉक के बाहर चला जा रहा था. सो देर वर 2 schools ऑफ थॉट कि भाई नहीं, डीम्ड डेट ऑफ सर्च इज ओनली टू कंप्यूट द टाइमलाइंस फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, लेकिन ब्लॉक पीरियड तो 2020 और उसके पहले का ही वो ब्लॉक पीरियड का असेसमेंट अभी होगा. तो 22 से असेसमेंट शुरू होगी, नोटिस अभी इशू किया जाएगा, और टाइमलाइन जो भी 6 महीना 9 महीना साल भर का है वो अभी से कंप्यूट किया जाएगा टू इनेबल द AO ऑफ द अदर पर्सन टू कंप्लीट द असेसमेंट. इसको लेकर भी जो झगड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट तक गया. सुप्रीम कोर्ट में विक्रमजीत भाटिया के केस में बोला गया नहीं भाई, इस आपका ब्लॉक पीरियड जो है वो 24 से लेकर पहले तक ही कंसिडर किया जाएगा. 2017 फाइनेंस एक्ट में फिर उन लोग एक अमेंडमेंट लेकर आए, दो नॉट मेकिंग इट एक्सप्लिसिटली क्लियर बट ट्राइंग टू से कि नहीं, डीम्ड डेट ऑफ सर्च इज ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ completion of the assessment. But even after that amendment of 2017, Delhi High Court in Ojas Medical Care and Bombay High Court in Sajuddin's case, they have said that नहीं, आपका block period, क्योंकि क्या हो रहा है, you are creating a situation where a non-searched person is on a worse off footing than a searched person. क्योंकि searched person को तो अपना finality पता है, आज search हो गई, 2 साल के अंदर में मेरा असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं जेब में हाथ डालकर आराम से घूमूंगा. जो नॉन सर्च पर्सन है उसे यही नहीं पता कि मेरे ऊपर तलवार कब आने वाली है. सो देयर कैन बी अ सिचुएशन कि 10 साल बाद भी अगर आपने सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड किया तो डीम डेट ऑफ सर्च तो वो 10 साल बाद का लिया जाएगा और डेटा मेरे से 16 साल पुराना मांगा जाएगा. सो कैन दैट बी डन बाय द लेजिस्लेचर एंड वेदर दिस अमेंडमेंट इज बियॉन्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनेबिलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, क्योंकि जहां पर मेरे ऊपर कोई इन्वेसिव एक्शन ही नहीं हुआ है एंड आई एम बीइंग सब्जेक्ट टू अ मोर हार्श कॉन्सिक्वेंसेज देन द सर्च्ड पर्सन. सो टेकिंग दैट प्रिंसिपल इनटू अकाउंट, कोर्ट्स हैव रेड डाउन द अमेंडमेंट टू से कि नहीं, अगर 24 में अमेंडमेंट आपका रिकॉर्ड हो रहा है तो 24 एंड 6 साल ही लिया जाएगा.
So according to me, that same argument may be taken in 158 BD as well, जहाँ पर recording of satisfaction is regarded as the deemed date of search. तो वो जो 16 वाला आप बोले कि 16 का जो डॉक्यूमेंट Beyond हो जाएगा। वो तो बियॉन्ड हो गया, वो तो फिर कुछ नहीं होगा। अब 158 BE, it is the time limit for completion of block assessment. So it is 12 months. ऐसा नहीं है, सबको बोलो 10 साल पुराना ही लिखे। हाँ 25/2015 ही लिखे, 10 साल पुराना ही चले। कॉन्सेप्चुअली कर रहे हैं लोग, अंकित लोग कर रहे हैं। तो 12 months from the end of the quarter in which the last authorization was issued. मैं यही आपको बोलना चाह रहा हूँ, वो जो क्वार्टर एंड है, क्योंकि मैं इसके लिए बोलना चाह रहा हूँ अंकल, वाई दिस इज इम्पोर्टेंट इज, क्योंकि मैं आपको मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस द ग्रेविटी ऑफ दिस इम्पोर्टेंस, कि आपका सर्च हुआ, सर्च में आपके लॉकर पर पीओ लगा दिया गया, लॉकर है आपकी वाइफ के नाम पर, तो सर्च आपका और आपके कंपनीज का तो आज खत्म हो गया, वाइफ का खत्म होगा जब उसका पीओ एग्जीक्यूट होगा। तो आपका समझिए दिसंबर में खत्म हुआ, वाइफ का खत्म हुआ जनवरी में, तो आपका असेसमेंट फ्रॉम द लास्ट ऑथराइजेशन ऑफ 31 दिसंबर से 12 महीना, क्योंकि क्वार्टर एंड हो गया, और वाइफ का आपका जो है वो मार्च एंड से 12 महीना है। अब अगर कोई एओ ने एक संग असेसमेंट करने के चक्कर में आपको मार्च टू मार्च लेकर चला गया, देन the other assessments according to me will get time barred. That is why this concept of last authorization, the concept of handing over of material document will assume important significance, and it is important to keep a track of these, क्योंकि ये POs जो लगते हैं, POs में सबका नाम नहीं रहता, PO सिर्फ उस एक आदमी या एक कंपनी या एक एंटिटी के नाम पर होता है, जो जनरली 30 दिन बाद या 60 दिन बाद ऑपरेट किया जाता है। 158 BF, अगेन सर्टेन इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज नॉट टू बी लेवीड, तो क्योंकि ब्लॉक है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम इज एट अ फ्लैट रेट, सो देयर इज नो इंटरेस्ट, देयर इज नो पेनल्टी इफ वी हैव ऑफर्ड इट टू टैक्स इन द रिटर्न ऑफ इनकम, एंड और अगर नहीं किया है तो देन देयर इज अ पीनल प्रोविजन प्रोवाइडेड विच इज एग्जैक्टली द सेम, सो देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर, आई हैव गिवन इट एज अ नोट एज वेल। एंड व्हाट इज द लेवी ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी? सो इधर क्या है, द लेवी ऑफ इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन योर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। So if the return is not furnished within the due date, then 1.5% per month or part thereof from the date after the due date up to the date of completion of the assessment, and penalty is 50% of the tax. तो 60% टैक्स है, 50% पेनल्टी है, तो 90%। इधर भी आपका जैसे 153D था, तो अप्रूवल ऑफ द एडिशनल एंड जेसी इज रिक्वायर्ड बिफोर पासिंग दीज ऑर्डर्स, and opportunity of heard is being mandatory. 158 BG और 299 जो है, which is for the competent authority to give the approval. Again, the provisions are exactly the same. There is no changes whatsoever. Purposes of this section, it is exactly again 300, that save and otherwise provided in this chapter, all provisions of this act shall apply to the assessment made under this chapter. But this is what according to me, जो मैं आप बोल रहा था ना, total income अलग चलेगा, और ये is enabling provision 158 BH for us to argue, क्योंकि it is saying that save as otherwise provided under this chapter, all other provisions of this act shall apply to assessment made under. So this is regarding the block assessment. Now I am coming to appeals, penalties and prosecution. I'll try to cover it as quickly as possible. तो appeals, तो ब्लॉक असेसमेंट, जस्ट टू समराइज, जो हम लोग का 158 BC से BFA तक जो भी BH तक जो प्रोविजंस है, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम रेप्लिका। इनकम टैक्स एक्ट 25 में कोई चेंजेस नहीं है, इट इज़ ओनली री नंबरिंग ऑफ दोज सेक्शंस एंड री नंबरिंग ऑफ दोज प्रोविजंस, नथिंग एल्स। अगेन व्हेन आई एम कमिंग टू अपील्स, these are the old sections and these are the new sections. Again, I am saying, just to summarize this, is that there is no change whatsoever from the earlier to the new, and overall the entire overarching principle remains the same in substance and in letter also. So जो भी timelines etc है for filing of form 35 etc remains the same. ये है form 35, अब आपका change कर दिया गया, I don't know whether anyone has recently filed any form 35s. अरे it has become form 35 अब आपका submission बनाने के बराबर हो गया, मतलब अब अपने को सारे एसएससीज को फॉर्म 35 फाइल करने का फीस चार्ज करना चाहिए,
it is a Herculean task to now file a form 35, the amount of data and information which they are now asking. कब से हुआ ये हो गया इस साल 3-4 महीना हो गया नोटिफाई हुआ। आप मतलब उसके अंदर में सारा पुराना अपील्स, अच्छा करंट में भी जो एडिशन हो रहा है, क्या नेचर है, क्या है उसका डॉक्यूमेंट, क्या है असेसमेंट में आपने क्या दिया, अभी क्या मतलब हर चीज उसके अंदर वो मांग रहा है। जो आइडिया की यूटिलिटी चेंज किया ना, इसके साथ ही उन्होंने मतलब एंड उसके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग इनक्लिंग फ्रॉम दिस फॉर्म 35 इज दैट लाइक ITRs दे आल्सो वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ द इश्यूज, कॉमन इश्यूज अक्रॉस डिफरेंट अपील्स की लिटिगेशन ज़्यादा कौन से पॉइंट पर हो रहे हैं और कौन सा आपका मतलब वो लेगेसी इश्यूज चले आ रहे हैं। सो द अमाउंट ऑफ डेटा विच दे आर आस्किंग फॉर इज ह्यूमंगस। So this is regarding the appeal before Commissioner Appeals. Again मतलब I am not, ट्राइब्यूनल का भी सब कुछ सेम ही है, there is no changes in the tribunal. काफ़ी सारे जो irrelevant clauses हो गए थे जो पुराने मतलब ट्राइब्यूनल लॉ से चले, they've simply omitted जो नए एक्ट मतलब 61 में भी grandfather कर दिए गए थे, but now they've completely removed those. Again appeals in High Court, Supreme Court etc. everything is captured, that 120 days timeline still continues, there is no changes. Now I am coming to the penalty provisions. So few of the penalties have been eliminated or clubbed and most of the penalties have been retained. मतलब अगर मेरा जैसे यहाँ पर पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम जो 271F में है वो यहाँ से हट गया क्योंकि वो कहीं और ऑलरेडी कैप्चर कर लिया गया है फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न. सो आई एम कमिंग वन बाय वन. तो कंपैरेटिव एनालिसिस ये जैसे है तो 270A का अब हो गया है 439. सो देर इज़ नो चेंज, इट कंटिन्यूज टू बी द सेम ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, सेम कंप्यूटेशन मैकेनिज्म ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग, इम्यूनिटी जहाँ पर आप 270AA ऑप्ट कर लेते हैं. अगेन देर इज़ नो चेंज इन दी 270 एंड 270AA. नॉट 271A एंड 441 जो है उसके अंदर में भी आपका कोई चेंज नहीं है. इट कंटिन्यूज टू फॉर फेलियर टू मेंटेन बुक्स एक्सेट्रा. अगेन फॉर इंफॉर्मेशन देर इज़ नो चेंज. 271AA. AC is now section 443. Again there is no substantive change and no change in the levy of penalty for 271AD also. Now 270AA जो है that is for the first time violations जहाँ पर आपका चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन्स और ये लोग को दे रहे हैं. अब दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये मैं पहले ज़्यादा मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया था. रिसेंटली मैंने किया कि अपने जो 31(1)(c) का ये सब का जो जब इन्वोक किया जा रहा है 13(3) का स्पेसिफाइड पर्सन या फॉर द बेनिफिट्स गिवन टू द रिलेटेड पर्सन्स ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट्स और द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मतलब आई हैव समहाउ नोटिस्ड कि कोई भी 271AA ही कभी भी इनिशिएट, वो 270A ही इनिशिएट सबको ही किए. मतलब दैट कैन बी अ लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट कि भाई आप अप्रोप्रिएट सेक्शन में जब पेनल्टी इनिशिएट नहीं किए हैं देन नो पेनल्टी कैन बी लेविड अगेंस्ट मी. उसके बाद 271B इज फॉर अगेन फॉर फेलियर टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड. देयर इज नो चेंज. अब आपका 271C और CA जो है that is now 448, 449. Again the penalty provisions are the same. I'll just come straight away to जहाँ पर कोई changes हैं. अब जो आपका 139A का जो था फॉर फेलियर टू ऑब्टेन पैन या कोटिंग ऑफ पैन का जो था, इसके अंदर सरप्राइजिंगली अब जो है देव रिमूव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. पहले पेनल्टी लगाने से पहले अपॉर्चुनिटी दिया जाता था और वो एक्ट में वो लिखा हुआ रहता था. सो आई डोंट नो वेदर दिस इज गोइंग टू बी नाउ अ सिस्टम जनरेटेड पेनल्टी, कि आपको सिस्टम से ही अगर पेनल्टी लगकर कल को वो TDS या टिन के जो ऑर्डर्स आते हैं ना NSDL में, अगर वो लग करके आगे, सो टुमारो यू डोंट चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द नोटिस
कि आप विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी आप कैसे मेरे को पेनल्टी लगा सकते हैं. लाइकवाइज विथ 272BB फॉर फेलियर टू ऑब्टेन टैन TCS एंड 273A जो है जहाँ पर CIT इज एम्पावर्ड टू रिड्यूस और रिमूव द पेनल्टी, वह 469 में देव कैप्चर्ड इट. बट अगेन 469 इज ओनली टू रिड्यूस और वेव दी अंडर रिपोर्टिंग. उन्होंने मिस रिपोर्टिंग उसमें कैप्चर नहीं किया है. Now 273B is a general immunity from penalty for the list of defaults that is now captured in 470 and 274 जो है which lays down the procedure for levying the penalty, मतलब जो 6 महीना from the end of the year in which the notice is issued. Again it is same, but अब क्या है कि it consciously removes the faceless scheme based penalty mechanism which was introduced earlier. तो अगर अब आप सेक्शन 471 आप देखेंगे तो पेनल्टी अभी तक वो जो पेनल्टी यूनिट्स लगा रहे थे, somehow there is no reference to that faceless regime under 471 because procedure में जो है no order imposing penalty under this chapter shall be made unless assessee is being heard or has been given a reasonable opportunity of being heard. No order imposing a penalty under this chapter shall be made without prior approval of the Joint Commissioner. An income tax authority on making an order under this chapter in imposing a penalty unless he himself is the assessing officer shall send a copy of the order to the assessing officer. So surprisingly that reference to faceless is now removed and not over here. So I don't know whether are they planning कि अब under the new regime penalties जो है वो AO लगाएगा और असेसमेंट फेसलेस करेगा. 532 वाला जो मैंने अभी बताया ना, उसमें अभी सब बहुत कुछ आना बाकी है. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि देन अगेन वही जो अभी आपका 144B का झगड़ा चल रहा है, समझिए अब मैं रूल फ्रेम कर दिया. नाउ विदाउट देयर बीइंग अ सब्सटेंटिव चेंज इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 470 कैन अ रूल ओवरराइड द प्रोविजंस और नॉट. नाउ 275 अगेन फॉर द बार ऑफ लिमिटेशन, अगेन इट इज क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो 6 महीने में करना है और बाकी आप अबेयंस में चला जाता है जब तक अपना अपील्स डिसाइड नहीं होता. नाउ आई एम कमिंग टू ऑफेंसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन. नाउ इन प्रोसिक्यूशन आई हैव जस्ट रीनंबर्ड. आई कैन ऑल्सो शेयर द स्लाइड्स विद आयुष. यू कैन, अगर किसी को ये कंपैरेटिव डेटा चाहिएगा तो. इसके अंदर में भी आपका लार्जली कोई चेंज नहीं है इन दी प्रोसिक्यूशन. एंड 276C जो है उसके अंदर में भी आपका जो टाइमलाइंस और एक्सेट्रा सब है सारे के सारे सेम ही हैं. बहुत नॉट 276D जो है उसमें था विलफुल फेलियर टू अवॉइड प्रोड्यूसिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा बिफोर द असेसिंग ऑफिसर. यहाँ पर उन्होंने फेसलेस रिजीम भी लिख दिया है कि अगर आपने AU में भी नहीं दिया तो इसका मतलब है AU भी आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सकता है. सो 270 अदर एक्चुअली ऐसा कोई मेजर चेंजेस आपका इसमें भी नहीं है. आपका सिर्फ 278A जैसे जो था कि आपका रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो था 6 months to 7 years, it is again featuring in 485. The key update is that it only aligns the repeat offense provisions with the modernized TDS and TCS and income reporting sections, while the essence of stricter punishment for the repetition remains the same. हाँ, 278D presumption as to the assets. तो आपको ध्यान में होगा पहले अपने बोलते थे कि सर्च में जो मटेरियल मिलता है इट इज़ प्रिज्यूम टू बी बिलोंगिंग टू द सर्च पर्सन एंड द कंटेंट्स इज प्रिज्यूम टू बी पर्टेनिंग. तो वो सिर्फ एसेट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए था, डिजिटल एविडेंसेस नहीं था. तो उसको भी लेकर जो झगड़ा सो नाउ द डिजिटल एविडेंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन विच आर टेंडर्ड इन एज एविडेंस is now explicitly mentioned in section 489 because there are decisions of Bombay tribunal and one I believe a Delhi tribunal कि जहाँ पर है कि जहाँ पर आपका digital evidence like WhatsApp chats etc. if it is not supported by a section 65B information technology act certificate, those are inadmissible. क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन आपको एज एविडेंस एडमिट करना है
तो उसको आईटी एक्ट में आपको सेक्शन 65B का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा दैट इट हैज़ नॉट बीन टैम्पर्ड विद and that it is the exact replica of the seized. But recently in Vetrival Minerals, Madras High Court has read it down. They said कि 65B जो है that is only applicable in the context of Indian Evidence Act, that cannot be extrapolated to Income Tax Act 1961. We'll see where that goes. क्योंकि ये आपका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है कि अगर इसमें टैम्परिंग हुई है या नहीं हुई है. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग ना कि भाई आपने अगर मेरा फ़ोन सीज कर लिया, इफ़ यू कुड हैव एडिटेड एनी ऑफ माई मैसेजेस एंड यू से दैट इट इज़ फाउंड ऑन द डेट ऑफ सर्च, सो हाउ डू यू से कि मतलब वेदर कैन आई चैलेंज द जेन्युइननेस. इनफैक्ट देर वॉज दिस इंटरेस्टिंग केस कि असेसी का अप्रैल में सर्च हुआ, उसके फ़ोन में उस दिन दिसंबर का कोई भी ईमेल्स या कुछ नहीं था. मई में सर्च हुआ, उसमें उसका सपोजिटली दिसंबर का मेल्स और सब मतलब जो पीओ ऑपरेट हुआ उससे फ़ोन में सारा का सारा सो कॉल्ड मेल्स और मतलब दैट इज़ व्हाट दे आर क्लेमिंग कि हमको मई के फ़ोन में मिला. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जब आपको अप्रैल के सर्च में ये नहीं मिला तो मई के सर्च में आपको दिसंबर का डेटा कहाँ से मिल सकता है. सो मेनी हैव चैलेंज द जेन्युइननेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो. अगेन नाउ प्रोसिक्यूशन इज़ टू बी इनिशिएटेड फॉर मतलब इसके अंदर भी आपका सब्सटेंटिवली देयर इज़ नो चेंज इन दी प्रोविजंस. प्रोसिक्यूशन आई एम श्योर कि उतना ज़्यादा आ भी नहीं रहा है. अभी जो गवर्नमेंट करे डिक्रिमिनलाइज कर रही है, इसको नहीं कर रही मॉनेटरी दे रही और डिक्रिमिनलाइज कर रही है बाकी एक्ट वगैरह में. नहीं, इसके अंदर आपका सेम लिमिट्स है, वो 10,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख. मतलब आप इन अ बिगर पर्सपेक्टिव, जैसे अभी जो हम लोग शेड्यूल एफए का ही बात कर रहे थे, दैट 20 लाख लिमिट अकॉर्डिंग टू मी इज पीनट्स. मतलब कि क्योंकि यू आर ट्राइंग टू अगेन दे विल टेक द वैल्यू ऑफ द अनडिस्क्लोज्ड एसेट ऑन द डेट. आई एम फेस्ड विद अ सिचुएशन कि एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी अपनी मतलब ग्लोबल इंश्योरेंस सिंगापुर से. अब उन्होंने उस समय कुछ वो होता है ना, आप वन टाइम पेमेंट कर दो तो 5 साल तक आपको और पेमेंट नहीं करना है. उस समय उन्होंने कुछ 10 लाख का पेमेंट कर दिया था. अब उसका वैल्यूएशन का जब सिंगापुर से रिपोर्ट आ रहा है तो वो आज के दिन उसका वैल्यूएशन $2 लाख बता रहा है, जबकि वो इनकैशेबल पॉलिसी नहीं है कि मैं सरेंडर करूंगा तो मेरे को $2 लाख मिल जाएगा. अब वो $2 लाख के बेसिस पर मेरे अगेंस्ट बीएमए इनिशिएट हुआ है कि भाई आपने अपना पॉलिसी का डिटेल्स जो है आपने शेड्यूल एफए में डिस्क्लोज नहीं किया. क्योंकि 20 लाख आप डॉलर टर्म्स में आज $100 है, ₹100 का रेट है. $20,000 का एसेट मतलब आप आज के दिन किसी स्टूडेंट का अकाउंट, मतलब ये 20 लाख का लॉजिक लाने का था जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के केस में इनिशिएट हुआ था. क्योंकि व्हेन आई एम गोइंग टू स्टडी अब्रॉड तो मेरा वहाँ पर स्टूडेंट बैंक अकाउंट खुल जाता है. तो अगर मैं वहाँ मैकडोनल्ड में काम किया, थोड़ा बहुत रुपया वहाँ कमा लेता हूँ, वहीं से खर्चा कर देता हूँ, मम्मी पापा कोई रुपया वहाँ रेमिट कर देते हैं, वहाँ से खर्चा कर देता हूँ. द ईयर इन विच आई रिटर्न to India, I become a resident, and technically even during my stay as a student abroad, I am a resident of India. I am not a non-resident. So I have omitted to disclose this student bank account in all the 3 returns. अब इस अकाउंट के अंदर में क्या है कि $20,000 का साल भर में रुपया डिपॉजिट और आना जाना is nothing if you see in the bigger scheme of things. क्योंकि अगर समझिए मैंने आपका यूनिवर्सिटी फ़ीस ही आपके उस अकाउंट में या जो आपका अकोमोडेशन फ़ीस है वो भेज दिया उसके अंदर में, उसी का पेमेंट्स अगर आप टोटल कर लेंगे तो 20 लाख पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो आई थिंक मतलब देयर नीड्स अ सीरियस रिकन्सिडरेशन ऑफ दिस ओवरऑल पॉलिसी कि ये जो ब्लैक मनी एक्ट और ये जो इतना हाई रेट ऑफ पेनल्टीज़ और ये जो ला रहे हैं, मतलब इट इज़ एक्चुअली एक्टिंग एज अ डेटरेंट फॉर ऑल दी. 20 lakh limit, is it on the asset value, is it on the peak balance, No. or is it on the what? एसेट वैल्यू तो एसेट इज पीक, एसेट का अनडिस्क्लोज्ड एसेट का डेफिनेशन है एक्सक्लूडिंग ऑल दी डेबिट्स, ग्रॉस क्रेडिट्स इज ट्रीटेड टू बी दी अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स. तो आप वहाँ पर मतलब सो आई थिंक बिगर पॉलिसी कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड इन दिस इंटायर. And are we required to disclose these insurance policies also? यस. Beneficial तो interest. पेमेंट जो 10 लाख है वो पूरा नहीं 10 लाख नहीं माना जाएगा. सर पेमेंट 10 हम यही तो आपको बोल रहा है. अब मैं बोल रहा हूँ इसका वैल्यूएशन रूल्स तो कहीं कुछ है ही नहीं ना. मैं मेरे हिसाब से शेड्यूल एफए में तो मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट ही डिस्क्लोज करना है, लेकिन प्रॉब्लम कि अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो वो वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड एसेट होगा ऑन द डेट ऑफ डिस्कवरी. उसके 7-8-10 कैटेगरी
ऑन द डेट ऑफ डिस्कवरी जो रेट प्रिवेल कर रहा है दैट इज ट्रीटेड। अब वो 10 लाख का वैल्यू अगर आज 50 लाख हो गया है, सो एक है कैटेगरी, हम तो 20 लाख इज ऑन द डेट ऑफ डिस्कवरी। उनका बोलने का मतलब है आपको फॉरेन से रिलेटेड जो भी है ना सब बता दो। सो दैट इज नहीं, फॉरेन से रिलेशन में अंकल आपका और भी प्रॉब्लम्स क्या है। नाउ माई क्वेश्चन इज, इफ यू आर इन टू एक्सपोर्ट्स, आर यू रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल योर फॉरेन डेटर्स इन शेड्यूल एफ ए और नॉट? अकॉर्डिंग टू मी यस। मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ, आपका कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कहाँ, आप हमको दिखा दीजिए कि एसेट में आपका ट्रेड रिसीवेबल्स इज नॉट इंक्लूडेड। मैं वही बता रहा हूँ, एनी अदर में आएगा, सब कोई कर रहे हैं, बहुत जन इस साल किए हैं। इम्प्यूटेड एसेट्स, करेक्ट। ये स्ट्रेच्ड स्ट्रेच नहीं है, अरे इट इज, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दिस दे आर फेसिंग दिस ट्रबल। तो उसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आप कहाँ तक इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, मतलब। एंड देन आई थिंक द बिगर पॉइंट ऑफ डिस्कशन शुड बी, कैन एन इनकम टैक्स एक्ट बी एप्लीकेबल फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स? Ultimately, the charge of income tax act in section 2 is on the income. Not on that. It is not on disclosure of my assets. To the extent if I've, they had clarified उनका तो intention था कि वो asset undisclosure तो पुराना income add होगी वो asset का creation। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ अगर मैंने इनकम डिस्क्लोज कर दी थी, मैं सिर्फ शेड्यूल एफ ए में डिस्क्लोज करना भूल गया। नहीं एफए में ना, नहीं एफए में ड्यूअल रिपोर्टिंग है, एक जगह नहीं, उसमें इनकम भी पूछता है। मैं मना नहीं कर रहा कितनी हूँ, इनकम हुई, मैं बोल रहा हूँ शेड्यूल एफ एस आई तो जब है वो फॉरेन सोर्स्ड इनकम है, जहाँ पर समझिए एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स है, तो वो तो आप सेल्स में इंक्लूड कर लिए हैं। already disclosed, that is already disclosed. नहीं, तो शेड्यूल एफ ए में नहीं रिपोर्ट किया तो 10 लाख की पेनल्टी तो है ही। Don't think कि वो black money में नहीं नहीं, इट, अरे आप सर अभी आप देखिएगा जब नोटिसेज आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आ रही है already, freelancers who are करेक्ट आ रहा है उन लोग को ये नोटिसेस। आपका क्या चीज़ का नहीं आ रहा, आपको एक्चुअली आजकल पता नहीं चलता है। आप अगर आज कमोडिटीज़ में डील कर रहे हैं और आपको हेजिंग करना है, आप आरबीआई में स्पेशल डेजिग्नेटेड अकाउंट खोलते हैं परमिशन ले करके, आपको पता ही नहीं चलता आपका ब्रोकर कब फॉरेन में आपका एक उसके ब्रोकरेज अकाउंट भी खोल दिया है। क्योंकि जब वो फॉरेन हेज जो कर रहा है उसके लिए आपका जब समझिए कॉपर है, तो कॉपर का वो लंदन मेटल एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा है, तो लंदन मेटल एक्सचेंज में जब तक आपका एक कस्टोडियल या ब्रोकरेज अकाउंट नहीं खुलेगा, होना नहीं है। और ये जो इंडियन अकाउंट में जो फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलते हैं ये भी डिस्क्लोज नहीं होगा। नहीं, domiciled in India। डोमिसाइल्ड इंडिया। तो आपका वो जो फॉरेन अकाउंट है, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली फॉरेन बैंक अकाउंट, एनी अकाउंट हेल्ड अब्रॉड। हाँ, ये जो पहले जो फंडिंग करते थे ना IPO वाला, ये इतना अकाउंट खोल दिया पता ही था, बाद में मालूम चलता है अकाउंट है जीरो बैलेंस रहता है, उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं है। नहीं, दिस इज़ अ ट्रबल। आई हैव अ केस वेयर जहाँ पर एसएससी ने डॉशे बैंक के संग अपना रिलेशनशिप सिंगापुर में शुरू किया, उसने वो डिस्क्लोज भी किया। डॉशे बैंक ने उसका 10 अलग करेंसी अकाउंट्स खोल दिया वहाँ पर, क्योंकि आप अपने जब साइन करते हैं बैंक का डॉक्यूमेंट, अपने सब पर फट 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 साइन तो मार देते हैं, वो अगला को जितना अकाउंट खोलना है वो खोल लिया। सो ठीक है, दैट इज अ डिस्कशन। स्टूडेंट में अगर वापस माने 6 मंथ स्टूडेंट पढ़ाई होगा उसके बाद वो जॉब कर रहा है तो उसमें क्या रहेगा? स्टूडेंट में तो स्टूडेंट आप जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे विद अ वैलिड वीज़ा, आपको बेनिफिट ऑफ दैट 182 डेज नहीं मिलेगा। दैट इज माय व्यू। स्टूडेंट जो रेजिडेंट है दिखाते हैं, हाँ, वो जो स्टूडेंट है तो सपोज करो अगस्त या सितंबर पढ़ाई पूरी हुई वो जॉब भी कर रहा है, जो स्टूडेंट लोग तो जॉब भी करते हैं नहीं तो आप टेक्निकली आप ऑफिशियली तो जॉब कर नहीं सकते। बट पैसा तो आ ही रहा है। पैसा आ रहा है, यू ऑफर इट इन इंडिया, यू ऑफर इट इन इंडिया। आप तो इंडिया के रेसिडेंट है ना, योर ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल। इनकम टैक्स है ना, तो आप इंडिया में टैक्स दीजिए उसके। First of all, are you admitting that you are violating the visa norms? Number one. Number two. ये पढ़ने जाते हैं ना, कोई तो कोई काम करके अरे मैं सर आपको नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड नोटिसेज इन। अरे मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट की वाइफ बाहर 8 पढ़ने गई थी, तो 8 में उसने अपना अकाउंट खोल लिया और हस्बैंड को भी पता नहीं, वो अपना वहाँ पर कुछ कमाई की, कोई दुबई वाला उसको पेमेंट भी दे दिया, कोई उसका आर्ट का ड्राइंग भी खरीद कर लेकर चला गया, वो दे अपना अकाउंट में रुपया विड्रॉ कर बंद कर यहाँ आ गई, और अब उसको BMA का नोटिस आया है कि 2 साल तुमने जो वहाँ अकाउंट ऑपरेट किया था। उसका क्या डिस्क्लोजर कहाँ है? ऐसे कि foreign assets होने पे I think mandatory हो जाता है ना return filing होगा या for Yeah, even if I, there is no that is what I'm saying, for students it is becoming complicated because students don't have any income, but according to me you are a person under 139 to file a return. फॉरेन एसेट है
है तो सबको इसे रिटर्न, सारे स्टूडेंट्स आज के दिन, जैसे इफ आई एम एडवाइजिंग समवन एंड आई एम आस्किंग ऑल दी स्टूडेंट्स टू फाइल द रिटर्न, आप इनकम चाहे जीरो दिखा दो शेड्यूल एफ बहुत इम्पोर्टेंट तो हो गया है। ठीक है। Point is that. मैक्सिमम सैलरी और स्टूडेंट वो है 182 डेज सर आपका करंट ईयर का, अप्रैल टू मार्च, वीजा से नहीं, फाइनेंशियल ईयर में आपका डेट जब से आप फ्लाई ऑफ कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपका रूल है कि वेदर कौन सा डेट इंक्लूड होगा, कौन सा एक्सक्लूड होगा. सो देर आर जजमेंट्स कि डेट ऑफ फ्लाइंग आउट एंड डेट ऑफ कमिंग इन विल बी एक्सक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग दी 182 डेज, बट डिपार्टमेंट उसको डिस्प्यूट करता है. डिपार्टमेंट डेट ऑफ फ्लाइंग आउट को तो एक्सक्लूड कर देता है, लेकिन डेट ऑफ फ्लाइंग इन को इंक्लूड करता है. So I'll just conclude my session. I think we've deviated a lot. So thank you so much, everyone. If anyone has any questions, हाँ सर, फॉरेन एसेट्स में जब हम लोग इस फॉरेन स्टॉक्स का बात कर रहे थे, उसका पीक वैल्यू का क्या रहेगा? वो तो एक आ गया वहाँ से फॉर्म 16 में एक वैल्यू, ये आपका ESOP है, तो वो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? एक वैल्यू है और वो पीक वैल्यू भी वही डाल देंगे? हम ऑर्डिनरली वही, क्योंकि आपको उधर फॉरेन में अभी तक तो आपको वेस्ट ही नहीं किया है, और आप ये बोलेंगे कि आज का उसका मार्केट लिंक्ड प्राइस जो है वो वही बता। वो नहीं, हम बोलते चलिए वो तो मैं पब्लिक डोमेन से भी निकाल लूंगा कि उसका शेयर प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी अंटिल इट वेस्ट, तो उसका मार्केट वैल्यू आज के दिन तो उसी तो ब्लैक स्कोल्स मॉडल लगा करके आपने वो वैल्यू पकड़ा है फॉर टैक्सिंग इट मी. सो दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट. सो दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ दैट एसेट. You are saying that whatever the value they have investment calculated value. as सैलरी में जो OP, लिए वही डालेंगे, जो investment value That is the peak value. जो सैलरी में दिखा रहे हैं वही डालेंगे. जहाँ पे शेयर्स क्रेडिट हो रहे हैं. नहीं, जब अगर अरे यहाँ फिर तो वो ESOP रहा ही नहीं ना बॉस. हाँ, ESOP नहीं है, बट शेयर्स क्रेडिट हो रहे हैं. Shares- शेयर बेस्ड पेमेंट के साथ. शेयर्स क्रेडिट हो रहे हैं तब तो फिर उसका पीक वैल्यू तुम्हारे पास है. अभी बात हो रहा है ESOPs का. नहीं, दो तरह, एक होता है ESOP, ये एक्चुअली शेयर बेस्ड पेमेंट्स का बात शेयर कर बेस्ड रहा है. पेमेंट्स होता है. उसमें आता है. मेवा जो है उनको शेयर उनके पास है ही नहीं, ना डिबेट डिबेट में है. तो 2-3 कंपनी अमेज़न के थे, तो शेयर तो वही है फिर. हाँ, तो वहीं पे शेयर नहीं, आपका अभी इनफैक्ट आई थिंक मैं 2 दिन पहले ET में पढ़ भी रहा था, ये फॉरेन ESOPs के लिए दे आर गोइंग टू ब्रिंग सम न्यू रिजीम ऑल टुगेदर. कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि देखिए नहीं, अकेले आप कन्फ्यूजन रिगार्डिंग उसका वो फेमा में भी ये लोग, क्योंकि फेमा में अभी तक फॉरेन ESOPs के लिए कुछ है नहीं, तो इसीलिए ऑटोमेटिक रूट में इशू किया जा रहा है बहुत इजीली. मतलब जैसे आप जैसे एम्प्लॉइज का बोल रहे हैं, कहीं पर किसी को RBI में कोई नोटिफाई मेरे नहीं. को भी नहीं पता था, मतलब वो साइन करते बस आधा का टैक्स आया. पता तो होता है सर, मतलब उतना मिलेगा ध्यान कम नहीं मिलेगा देते। डिबेट नहीं नहीं सर, आधे लोग को ये लगता है मेरे को इस पर टैक्स ही नहीं देना है. हाँ, क्योंकि कंपनी डील पे वो बोलते हैं तो बाहर है. कंपनी डील कर रही है, वो ऐसे ही सोच लेते हैं. हमको डिस्कस करना है नहीं, पीपल आर नॉट Sir. अवेयर ऑफ दैट. In Australia, there is a rule, there is a super account. हाँ. Which anybody getting a salary from a company, the company will pay 9% extra to a super fund. So that super fund also has to be disclosed. When the person comes back to India, that also has to be disclosed. यस, एनी एसेट सर. सो दैट सुपर फंड इज अ एसेट. अगर आप आज के दिन इट इज लाइक पेंशन और ग्रेजुएट, मतलब सो दैट फंड विच इज, तो ये तो पेंशंस को लेकर ही तो आपका सबसे बेसिक नोटिस आया है. दोज हु आर वर्किंग अब्रॉड, और उन लोग का जो एन्युइटीज और पेंशंस क्रिएट हो गया अंडर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्रीज, एंड देव कम बैक. तो अब आकर एज एन अकाउंटेंट उसने मेरे को अपना म्यूचुअल फंड शेयर्स और सब तो बता दिया. वो भूल गया बेचारा वो पेंशन फंड अकाउंट नंबर बताना, क्योंकि वो अभी तक उसको इनकैश ही नहीं किया. इंडिया में प्लग ETF कितने पड़े थे, मर्दी नहीं उनको. अरे हम यही तो ETF के बता दिए, बड़े-बड़े बोला एनवी कहां से आया रुपया. so that is required to be disclosed. ठीक है. So thank you everyone. Thank you. इतना तो ये करना है. इसलिए तो निकाल दे, मालूम नहीं.